And let me introduce the Chandan. Chandan is a graduate in French language. His graduation is in French language. And then French is the toughest language to learn. I attempted myself 3 times in Alliance Français and withdrew after 1 month or maybe after 2 months or something like that. I could never muster up the courage and to learn the language. But again, I still have a fascination for this language because the best of the world cinema is in French language. Yes, right. Part of it. So Chandan is graduate from, then he's from Banaras, and Banaras is a wonderful city for many reasons because it has art, culture, drama, music, cinema, and various other reasons, particularly the city of Lord Shiva, if I'm not mistaken. So if somebody come from abroad after Taj Mahal, the next destination is Banaras. Banaras. So Yes. Chandan is graduate from there, and then he studied in National School of Drama. And by that time, I have a very old relationship with National School of Drama for almost since 1982, I would say. I am coming over there and watching films, plays, and things like that. And I have many friends who are very important people now today in the industry, and some who are really, really close to my heart. So Chandan, I have seen at least 3 of your productions, particularly in the second year. And that's how I regularly started watching the plays from student production. And also occasionally I keep writing about my views on theatre. So that's how I met Chandan. And then Chandan has been coming to Craft for conducting the workshop with our acting students. So today I requested him to, at the 0 hour, that he should join here because my plan came out only yesterday night that instead of me taking the class, let somebody who's an expert on the acting should talk about acting. So today, Chandan, before you join this meeting on the WhatsApp group, I have shared one of the important books which Chandan shared with us on the Stanislavski acting system. So make it a point that we have made 5 copies of that particular book for our library of the Craft Film School. And also some of those who are really, really serious to understand the Stanislavski in a very simplified manner. I was telling him that 11th, 12th, when we used to have the physics, chemistry, there was a help book. We called it the Physics Made Simple, Chemistry Made Simple. So that book can be also named as a Stanislavski Made Simple. It has very easy display and a very simplified manner. His techniques are being explained by people who are an expert. Yes. Today, Chandan would be conducting the today's class, and I think now is 6:05. More or less, everybody is here, and I will keep admitting those who will come late. So, Chandan, first I would like to address, then I would share the PPT, which you are a little bit aware of it, and then you can keep talking. So, you would like to address something before I go to the PPT. So, and in between, switch between Hindi versus English, because there will be some that will be easy for me also. 90% of the people or 70% of 80% of the people understand Hindi as well as English. Okay, and wherever they feel some complication with the language, I can switch as per my English knowledge. I can switch into English or in between Hindi. Correct. So I will try to speak in both of the language. Correct. So yes, sir. Please carry on. Okay, so sir, I'm not able to watch everybody in they are in offline mode or something. What they can do is, I request today, let the student go unmute their video. Let the audio be unmuted by them, and let the video, see how we do it, that once the lecture is over, and student, they will raise their hand, and then one by one we take up their questions. Okay, fine. So today I would request that you can unmute your video part. Videos. And let the audio be unmuted, because right. Instruments should not be there. Right. Thank you, sir. Thank you. Pleasure. Yes. Hi, everybody. So today we are going to discuss about the Stanislavski process and some of the method acting also.
before that, when we will start our discussion or our class on realistic acting. First of all, we need to know why we should learn realistic acting, because there is a lot of acting there is a lot of acting types in acting world. Like Brecht acting theory is another perspective of acting, and there is a classical acting method is also exist in our culture and western medium also. And there is another type of method acting like Sanford Meisner, or some of the body movement kind of acting, like extremely physical theater of sorry, I forgot the name. I'll take in between. So these are the all acting practices are existing in the practice. So then why the realism is so much important for an actor? Why we need a Stanislavski system or method? Why it is necessary to discuss in our society in this modern day perspective of acting? So let's come to the first. We have to discuss, or we have to know about the depth about the realistic acting, where it is coming from, and why we are practicing in current scenario, or it's a modern pedagogy in all the institutions of acting. This is the most practicing art as a realistic acting system. So first of all, we will come to the how the realism came into the acting. Realism also in the painting, also realism also in the literature. But why realism came into the acting is a very important thing, and then you will be able to understand the Stanislavski contribution into acting system. Because that Stanislavski system is the father of the modern acting. You can say, if someone asks you in exam who is the father of modern acting, you can say Stanislavski, Konstantin Alexeyevich Stanislavski. He is one of the pioneer in modern acting. But why the modern acting is necessary, we will discuss today. Stanislavski. Before discussing the Stanislavski, I'll discuss the realism. So the realistic acting system came into the existence from Russian culture. Okay, so first of all, see, when the realistic acting training came into the existence, before that, all the acting system was there in Russia was the like either is the classical or either it's a very amateurish kind of the acting theory was practicing there. And you see that Stanislavski was also 10 years practicing that kind of amateur theater there, where the shabbiness. Excuse me. सर हिंदी में भी बोलते जाइए ना जी. देखेंगे कि स्टैनिस्लावस्की जो है, बोलेंगे, लेट मी से दैट, हिंदी में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोलेंगे, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बोलेंगे, ये पहले मैंने क्लियर कर दिया था. जी, मैं बीच में बोलता रहूंगा. तो देखेंगे कि स्टैनिस्लावस्की जो है, जिस तरह से वो रशियन कल्चर के अंदर जिस तरह से वो एग्जिस्ट किया है, उसके पहले की जो प्रैक्टिसिंग थ्योरी रही है एक्टिंग के भीतर रशिया में, वो एक तरह से शैबीनेस ऑफ कॉस्ट्यूम्स, हैवीनेस, बड़े बड़े जेस्चर्स करते थे. वो एक तरह से अमेच्योर एक्टर थे जिनके पास पैसा ज्यादा होता था, वो लीड रोल मांगता था. उसकी थिएटर के अंदर उसकी वाहवाही या दादागिरी चलती थी. जो वो कहेगा वो होगा, या मे भी हो सकता है किसी भी डायलॉग को करते समय वो इंपॉर्टेंट डायलॉग पे रुक जा सकता है और बोल सकता है कि ताली बजाओ, क्लैप फॉर मी. सो ये जो प्रैक्टिस थी, इसके अंदर 10 साल तक स्टैनिस्लावस्की ने काम किया है. और उस समय जो रशिया में जो जिस तरह की परंपरा एग्जिस्ट कर रही थी, वो थी एक तरह से जमींदारी या जार जिसे कहते हैं, जमींदारों की प्रथा थी. जैसे जिस तरह से 1947 के पहले हमारे यहाँ देखेंगे जमींदारी प्रथा थी, उसके भीतर एक्टर्स काम करते थे, सॉरी एक्टर्स नहीं, किसान काम करते थे. जमींदार जो होते थे, वो जो होता था वो मूल रूप से सभी से कर वसूल करता था. वो जो कहेगा उस तरह का डांस होगा, वो जो कहेगा उस तरह की म्यूजिक होगी. सो ऑल जो पैट्रोनेज होता था वो जमींदारों के पास होता था. इसी तरह से देखेंगे कि रशिया में भी सेम सिस्टम था.
कि कॉमन मैन का कहीं भी आप देखेंगे कि कहीं उदय नहीं हुआ था, कॉमन मैन कहीं भी स्टोरी में नहीं था। वो खास करके टॉल्स्टॉय की कहानियों में देखेंगे या नाटकों में देखेंगे कि वो जमींदारों के बारे में या लॉर्डशिप के बारे में था। तो जब ये सारी सिस्टम वहां मौजूद थी, जब ये सब चीजें वहां चल रही थी, तो किस तरह से स्टैनिस्लॉवस्की को लगा कि रियलिज्म आना चाहिए? एक परफॉर्मर के मन में सबसे पहले ये बात नहीं आ सकती कि वो सोचे कि रियलिज्म कैसे लाया जाए। नहीं, ये सबसे पहले जीवन में आई कि आप देखेंगे कि रशियन सिस्टम के अंदर जो वहां की जो जीवनी थी या जो जिस तरह का जीवन वो लोग जी रहे थे, उसके बीच में एक मालिक था और उसके नीचे काम करने वाले आम लोग थे, जो कॉमनर जिन्हें कहते हैं। जो अभी भी जिस तरह से आप देखेंगे इंग्लैंड में है कि रानी है और रानी के नीचे जो है कॉमनर है ना। अभी भी वहां पर एक पैरेलली एक राजा का सिस्टम जो है वो ऑलरेडी वहां पे चल रहा है। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो रशिया में इस सिस्टम के खिलाफ जो पहली बार अगर आई तो वो आई औद्योगिक क्रांति से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दोनों ही थिएटर में, भारतीय थिएटर में, तो भारतीय थिएटर में मॉडर्निज्म या रियलिज्म का आना या रशियन थिएटर में मॉडर्निज्म और रियलिज्म का आना, ये दोनों ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ है। और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब मॉस्को जैसे बड़े बड़े शहरों का निर्माण होने लगा और जब वहां से वहां के लोगों को कोयला खदान में काम करने के लिए या किसी तरह के लेबर को काम करने के लिए जब लोगों को बुलाया जाने लगा, तो गांव से जो निम्न कामगार वर्ग थे, जो काम करते थे, उन सभी को लोगों को जाना पड़ा, शहरों में जाकर वो काम करने लगे। और उस तरह से एक नई आर्थिक उदारीकरण आई उन लोगों के भीतर, एक नई तरह से उनके अंदर एक फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ उनके अंदर। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जाकर फिर से देखेंगे कि आप इन सबों के पतन का, जो बड़े बड़े जमींदार थे या बड़े बड़े राजा थे, उनका पतन का कारण बना। पतन का कारण मतलब उनका विभक्त हुआ और वो जो सिस्टम था वो ऑलरेडी टूटा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि मार्क्सिज्म का उदय हुआ है या कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और ये लोग आए हैं। वो बेसिकली इसी ढांचा को तोड़ने के लिए आए थे। इससे एक्टिंग का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके माध्यम से आप रियलिज्म को समझ सकते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ। तो आप देखेंगे कि उस तरह से जब वो काम करने के लिए, तो हुआ क्या कि जिस तरह से इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, चाहे आप बिजली के लिए या मान लीजिए कोयले खदान का जब निर्माण हुआ तो उनको ढोने के लिए छोटी छोटी ट्रेनें चलाई गई मालगाड़ी को ढोने के लिए। भारत में भी आप देखेंगे कि ट्रेन का निर्माण मालगाड़ी को ढोने के लिए हुआ था, माल ढोने के लिए हुआ था कि न कि पैसेंजर को ढोने के लिए। तो इस तरह से जो विकास हुआ, वो क्या हुआ कि फिर उनसे संवाद स्थापित करने के लिए टेलीफोन लाइन की स्थापना हुई, उनसे डीजल ट्रेन को चलाने के लिए या बात करने के लिए विद्युत का इस्तेमाल होने लगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर जो ये ट्रैवल की जो व्यवस्था हुई, जिसके तहत आप एक छोटे से शहर से एक बड़े शहर की तरफ यात्रा कर सकते थे, इस कारण से क्या हुआ कि पलायन बहुत अधिक हुआ, लोग बाहर जाने लगे, वहां जाकर वो काम सीखने लगे, उस तरह की लाइफस्टाइल को वो लोग फॉलो करने लगे। और उस लाइफस्टाइल से क्या हुआ कि जो कॉमन मैन है वो अपनी आवाज रख सकता था। एक आम आदमी की जिंदगी जो है, इसलिए देखेंगे कि रियलिज्म का हीरो जो है, हीरो ऑफ रियलिज्म आर कॉमन मैन। किसी भी आप ये नहीं कह सकते कि घूमर वाली फिल्म कौन सी है वो मैं भूल गया। हाँ, पद्मावत या ऐसी कोई भी फिल्म, जैसे खास करके आप देख सकते हैं कि इंडियन जो सिनेमा मेकिंग है उसमें आप संजय लीला भंसाली को कॉमन मैन स्टोरी टेलर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनकी फिल्मों का हीरो जो तो राजा होता है या फिर कोई और होता है या कोई शासक वर्ग का आदमी होता है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं, उसमें कॉमन मैन हीरो नहीं होता है। पर रियलिज्म के अंदर खास करके ये एक पॉइंट आप लोग को नोट करना चाहिए कि रियलिज्म जो है उसका जो नायक होगा वो कॉमन मैन होगा। उसका नायक जो होगा वो आम वर्ग से आएगा, एक क्लास स्ट्रगल के भीतर से निकल कर आएगा और अपने लिए वो जीविका। 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी बोला। ये क्वेश्चन एफटीआई एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट से। जी, प्लीज डू यू थिंक that the hero of realistic cinema is a common man? क्योंकि जब हम 2 बीघा जमीन की बात करते हैं विमल रॉय की, तो जो कि कान फिल्म फेस्टिवल के अंदर उस जमाने में गई थी और जिसकी वजह से विमल रॉय बने, तो वो फिल्में जमीन की फिल्में थी, कॉमन मैन की फिल्म। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है कि
do you believe that the realism, do you believe that the hero of realistic cinema is a common man? Support your answer with the two example of Indian films. That could be one of the question. Please note down what Chandan has just said now. Please carry on. राइट सो सर के पॉइंट में मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। जैसे आप देखेंगे कि नियो रियलिज्म करके या नव उदारवादता का एक जो सिनेमा आया है, नव यथार्थवाद का सिनेमा, इसमें बाइसिकल थिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी प्रश्न कभी कभी आ सकते हैं कि बाइसिकल थिप्स या 2 बीघा जमीन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाइसिकल थिप का हीरो भी एक कॉमन मैन है। बाइसिकल थिप जो विटोरियो डा सिका की फिल्म है, वो उसका भी हीरो जो है वो कॉमन मैन है। और ये कॉमन मैन की जो अवधारणा है वो रियलिज्म के भीतर से आई है। क्यों? क्योंकि वहां क्लास स्ट्रगल हुआ है। कॉमन मैन जो है वो जीतता है, जीत कर कुछ अर्जित करता है और अर्जित करने के बाद अपना नाम करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के स्वरूप आपको बताता हूं कि आप लोगों ने अगर एंटोन चेखव का नाम सुना होगा, एंटोन चेखव, नॉट माइकल चेखव, एंटोन चेखव। एंटोन चेखव जिन्होंने चेरी ऑर्चर्ड या थ्री सिस्टर या अंकल वानिया करके ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है, द बेयर करके स्क्रिप्ट लिखी है, भालू करके हिंदी में अनुवाद है, 3 बहनें अनुवाद है, चेरी का बगीचा अनुवाद है, मामा वानिया अनुवाद है। इन सब के नायक, इन सब का जो नायक है, आप देखेंगे चेरी ऑर्चर्ड का नायक अचानक से एक लोपाखिन नाम का व्यक्ति हो जाता है, जो उनके ही घर, उनके खेतों में काम करने वाला व्यक्ति है और अंत में सारा जमीन उनका खरीद लेता है ना। जैसे आप फिल्म देखेंगे मैनचेस्टर बाय द सी, है ना, मैनचेस्टर बाय द सी जो ऑस्कर में गई थी, जो ऑस्कर मिली जिसे, वो कभी 2 साल पीछे साल पहले की ऑस्कर की फिल्म है। मैनचेस्टर बाय द सी का हीरो एक कॉमन मैन, नोमैडलैंड की एक्ट्रेस जो है वो एक कॉमन मैन है, मिनारी की एक्ट्रेस जो है वो कॉमन मैन। ये सभी एक रियलिस्टिक फिल्म का उदाहरण है, कॉमन मैन का उदाहरण है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। किसी को भाषा के लेवल पे समझ में नहीं आ रही है, वो तुमसे बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, आप हिंदी में बोलिए। आज थोड़ा सा कोई केरला बॉयज होगा तो उसके लिए देख लीजिए। जी, अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको इंग्लिश में बता दूंगा। तो आप देखेंगे कि पूरे सिनेरियो को समझने के लिए जब ये लोग कॉमन लोग जब वहां के हीरो होने लगे, तो ये कॉमन लोग अब जो वहां के साहित्यकार लोग जो थे वो वैसी कहानियां लिखना शुरू की, जिसमें कि जिसका हीरो कॉमन मैन हो, ऑब्वियसली जिसका हीरो कॉमन मैन हो, जिसके भीतर वो बात हो जो अपने दर्द को बयान कर सके, जो ये कह सके कि हाँ हमारा शोषण हुआ। These are all theory based on the Marxism, and this all came in the light during the Industrial Revolution in Russia. तो देखेंगे उस समय जो है ये स्टानिस्लावस्की जो है वो भी एक जमींदार का बेटा है, एक लैंडलॉर्ड का बेटा है, और वो इन चीजों को समझ नहीं रहा है। लेकिन जब उसे एंटोन चेखव की कहानी हाथ लगती है, थ्री ऑर्चर्ड, द चेरी ऑर्चर्ड और थ्री सिस्टर्स, तो उसको समझ में आता है यार यहाँ पर तो कहानी ये इस तरह से कही जाती है, ये कोई राजा के बारे में नहीं, राम के बारे में नहीं, कृष्ण के बारे में नहीं, ये कहानी ये कोई है वदन यहाँ पर नहीं है, ये तो एक कॉमन मैन की कहानी है। इसकी एक्टिंग कैसी होनी चाहिए, इसको तो एकदम बिल्कुल ही कैसा करना चाहिए। उसी दौरान स्टानिस्लावस्की जो है वो काफी बड़े हो चुके थे। मैं बता रहा हूँ कि स्टानिस्लावस्की का जन्म जो है वो 1863 में मॉस्को में हुआ था, एक जमींदार परिवार में। 1863 में उनका जन्म हुआ था। स्टानिस्लावस्की बॉर्न इन मॉस्को। चंदन मैं एक इंटरप्ट करना चाहूंगा जी। वो स्टूडेंट ये समझ रहे हैं अभी कि हमें तो एक्टिंग टेक्निक के बारे में बात नहीं की जा रही, तो आप सब लोगों को ये समझना जरूरी है कि कोई चीज कहीं पीक पे पहुंच पाई तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा। तो ये बैकग्राउंड को बताया जा रहा है, ना कि एकदम से एक्टिंग टेक्निक बता दो हमको, वो तो किताब में। तो ये आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया जा रहा है जिससे आप इन चीजों को ठीक से समझ पाए कि स्टानिस्लावस्की क्यों बन पाया। आज की एक्टिंग के अंदर जितने भी लोग हैं जिनकी थ्योरी है उसमें एवरेस्ट जो माना जाता है वो स्टानिस्लावस्की है, बाकी सब लोग वहीं से पैदा हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टानिस्लावस्की के बारे में भी मैं जस्ट रियलिज्म पे आ रहा हूँ और क्यों आया है, लेकिन इसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड को। 1863 में पैदा हुए, 1938 में ये दुनिया से चले गए। इनका जो जीवन काल रहा है बहुत लंबा नहीं रहा है, और 1877 से 1887 के बीच तक वो एक अमेच्योर एक्टर के रूप में वर्क करते रहे। एंड 1898 में उन्होंने नेमिरोविच दानचेंको के साथ मिलके एक थिएटर कंपनी की स्थापना किया जिसका नाम था मैट, यानी मॉस्को आर्ट थिएटर। मैट बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है इनका थिएटर में, मैट का। ये मैट की स्थापना किया उन्होंने, और जो जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की इस एक्टिंग सिस्टम को लाने के लिए, उसको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ एक्टिंग, आर्टिफिशियल ढंग से एक्टिंग करना,
अगेंस्ट द सेल्फ एक्सिबिशनिज्म कि मैं हूं, मैंने ज्यादा पैसा दिया है, मैं लीड रोल करूंगा, अगेंस्ट द सैबिनेस ऑफ कॉस्ट्यूम्स, against the rehearsal and working of the role, the bad type of the conducting of the rehearsals, and setting and the setting and the lack of the unity of the style in the production of the whole. तो इन सब के खिलाफ जो है वो स्टानिस्लावस्की आया। और कैसे आया देखिए कि मतलब उस दौरान 1882 से 1916 के बीच में वहां पर एक एक्टर हुए थे, इटालियन एक्टर, जिसका नाम था टोमासो साल्विनी का एक्टिंग देख के पहली बार स्टानिस्लावस्की ने जाना। वो लोग टूरिंग करने के लिए आए हुए थे रशिया में, मॉस्को में, और टूर में एक नाटक लेकर आए थे जिसका नाम था ओथेलो। और उस ओथेलो को जब वो देखने गए तो उनको लगा कि वाओ क्या एक्टिंग है यार, ऐसा एक्टिंग मैं क्यों नहीं करता। और वो जिस तरह से भारत में एक्टिंग करने के बाद लोग हाथ मिलाने के लिए स्टेज पे चढ़ जाते हैं, उसी तरह से ये लोग भी स्टेज के ऊपर गए और हाथ मिलाया, एक्टर से बोला कि ग्रेट एक्टर यू आर टोमासो साल्विनी। तो उन्होंने कहा कि नो आई एम नॉट टोमासो साल्विनी, वन एक्टर हु वाज डूइंग यागो, ही इज टोमासो साल्विनी। तो उनको लगा कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा था एक्टिंग के नाम पे, मैं कोई बड़ा बड़ा जेस्चर कर रहा था, न कुछ अपने आप को प्रिटेंड कर रहा था, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था। फिर किस तरह की एक्टिंग है यार, किस तरह से इनको मैं एक बार और देखूंगा। फिर उन्होंने एक बार और इस प्रोडक्शन को देखा और वहां से टोमासो, उनके भीतर एक बहुत बड़ा चेंजेस आया कि एक्टिंग मींस not projecting, acting is something different, something very different. And what is that? तो स्टानिस्लावस्की ने यहाँ से साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू किया, और साइकोलॉजी को पढ़ते पढ़ते उनके भीतर ये चीज आई कि एक्टिंग जो है वो केवल एक्टिंग नहीं है, केवल वो फिजिकल नहीं है, एक्टिंग है जो कुछ साइकोलॉजी से जुड़ी चीज है। इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम सारे साइकोलॉजिकल को पढ़ के स्टानिस्लावस्की ने पहली बार जो जिस चीज का नाम दिया अपने थिएटर प्रोसेस का, उसका नाम था एक्टिंग, स्टानिस्लावस्की एक्टिंग मेथड। ये मेथड शब्द जो है वो शेफकिन नाम के एक मनोवैज्ञानिक से उन्होंने लिया था, वहां जो साइकोलॉजिस्ट थे। लेकिन बाद में इन्होंने इनको महसूस हुआ और इन्होंने इनको मेथड नहीं कहा, स्टानिस्लावस्की सिस्टम कहा। आपको जब भी पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टानिस्लावस्की सिस्टम है, मेथड नहीं। नो, इट्स नॉट मेथड। मेथड ये अमेरिका में जाकर हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टानिस्लावस्की जो है वो वहां से सीखकर और 1938 के आसपास उनको पहली बार वो थिएटर को अलविदा कहे और फिनलैंड में छुट्टी बिताने के लिए गए। और वहां उन्होंने पहली बार एक किताब लिखी जिसका नाम था माई लाइफ इन आर्ट, उनकी बायोग्राफी, जिसके भीतर से ये 3 किताबें निकली है जो स्टानिस्लावस्की की हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है एन एक्टर प्रिपेयर, बिल्डिंग अ कैरेक्टर, एंड एक और है भूमिका की संरचना, उसका हिंदी नाम है क्रिएटिंग अ रोल। ये तीनों किताब जो है वो यहीं से आई है। वो स्टानिस्लावस्की की जो मेन किताब है आर्ट ऑफ माय लाइफ इन आर्ट, वहां से वो चीजें निकल कर आई। तो अब हम आते हैं कि ये किस तरह से काम करती है सिस्टम, और सिस्टम का मेनली तो आप देखेंगे कि जब से विज्ञान यानी साइंस आया, जब से जो मॉडर्निटी आई, या कह सकते हैं लाइफ में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उस वजह से जो विज्ञान आए, यानी जो बिजली आई, जो ट्रेन आया, जो ये सब चीजें आई, इस विज्ञान की वजह से बहुत चीजें आदमी के जीवन में बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ। जैसे कि अभी हमारे जीवन में ही बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। जैसे हम अभी यहाँ आईपैड से पढ़ रहे हैं और अपने फोन से लॉगिन कर सकते हैं, ये एक साइंस की वजह से हुआ है। उसी तरह से जो उस समय के जीवन में बदलाव आए, उन वजह से उनके जीवन में हाव भाव में जो कुछ परिवर्तन हो सकता था, वो सब कुछ को उन्होंने अपने एक्टिंग के भीतर शामिल किया। इसीलिए आप देखेंगे कि स्टानिस्लावस्की का थिएटर जो है उसको साइकोफिजिकल कहा जाता है। साइकोफिजिकल यानी फिजिक और साइको मीन्स द माइंड। तो वो इससे पहले जो थिएटर था उसके भीतर हम ये मानते रहे थे कि फिजिकल इज इंपॉर्टेंट, किसी का व्यक्ति का हम नकल कर लेंगे तो फिजिकल हम नकल कर लिए, उसके बाद उसी की तरह बोल देंगे तो एक्टिंग हो गया। पर नहीं, एक्टिंग करने के लिए साइकोलॉजी चाहिए, मनोविज्ञान चाहिए या साइंस चाहिए। उसके भीतर में ये पहली बार एक्टिंग के भीतर स्टानिस्लावस्की ने कहा है। इसलिए एक्टिंग, स्टानिस्लावस्की का एक्टिंग जो है वो वहां से साइंस इंट्रोड्यूस हुआ है एक्टिंग के भीतर, कि एक्टिंग इज नॉट अबाउट द एक्सटर्नल थिंग, एक्टिंग इज आल्सो अबाउट द इंटरनल समथिंग देयर इज इंटरनल।
तो देखेंगे कि स्तानिस्लावस्की ने दो चीजों पर महत्वपूर्ण रूप से काम किया है, दो चीजों के बारे में उन्होंने इंपॉर्टेंट ढंग से बताया है। एक, एक्टर वर्क ऑन हिमसेल्फ या एक्टर वर्क ऑन सेल्फ, और दूसरा एक्टर्स वर्क ऑन रोल। Stanislavski divided his system into the main two parts. First is the actor work on himself, and second is actors work on the role. Actors work on himself and actors work on role. इसके भीतर दो चीजें शामिल है, एक साइको, एक फिजिकल। The physical is the ultimate psychology of the character, and the physical is the उठना, बैठना, चलना, बोलना. These are all the method of physical action that I'll discuss later. Everything in a detail, whatever time we have, I'll try to discuss everything that you may use to write in your exam. You will be able to write in your exam. So first, हम लोग जो शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू करते हैं कि एक्टर्स वर्क ऑन सेल्फ क्या है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल अगर आपका हो या आप उसको लिख कर रख सकते हैं ताकि आप मुझसे पूछ सकें, या आपको इंपॉर्टेंट लगता हो आप क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर सकते हैं जो रियलिस्टिक एक्टिंग के सर्कमस्टांसेस के अंदर आता हो, तो उसके बारे में। ये सब कुछ हिंदी लैंग्वेज है सर? मैं कौन बोल रहा है? ये बुक का हिंदी लैंग्वेज है सर? ये बुक का हिंदी लैंग्वेज में? यस सर। हाँ, हिंदी लैंग्वेज में उपलब्ध है ये किताब। तीनों भूमिका की संरचना, अभिनेता की तैयारी और चरित्र की रचना प्रक्रिया, ये तीन किताबें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से छपी हैं। पर मुझे लगता है कि आप इस क्लास में ही समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस तरह की हिंदी में वो लिखी गई है और जिस तरह से उसके अंदर बताया गया है, उनको समझने में थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि उसमें अभिकल्पना, कल्पना, ये सब बातें की गई है। तो वो हिंदी में ही उन चीजों को लिखने की कोशिश की गई, पर हो सकता है आप समझ भी जाएं, तो वो तीनों किताब आप खरीद सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था कि क्या जिन्होंने ये किताब लिखी है मिश्रा जी ने, तो क्या वो अपना व्यूज भी इसमें डाल चुके हैं? क्योंकि नहीं, किसी अनुवादक के लिए अपना व्यू डालने का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई भी स्टूडेंट अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप अपने क्वेश्चन लिख के बैठ जाइए, आपके पास कॉपी है, लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब मैं आपको रेज करूंगा हैंड्स, तब आप जो है क्वेश्चन पूछेंगे। मैं 15 मिनट पहले खत्म कर दूंगा, अभी 6:30 हो रहा है, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है? जी सर, थैंक यू। ओके, फाइन। सो जो एक्टर्स वर्क ऑन सेल्फ के ऊपर, एक्टर्स को अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए, एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट कि एक्टर अपने कैरेक्टर के ऊपर क्या काम करेगा, दूसरा पॉइंट ये। इन सभी को हम पॉइंट नंबर और सिलसिलेवार इसमें हम डिस्कशन करेंगे। आप चाहें तो आप नोट्स लेते रह सकते हैं। एक्टर्स वर्क ऑन सेल्फ के ऊपर जो पहला पॉइंट है वो है एक्टर्स वर्क ऑन सेल्फ, यानी आप अपने ऊपर क्या काम करेंगे। यही दो पॉइंट हो सकते हैं ना, एक कैरेक्टराइजेशन हो सकता है, एक सेल्फ हो सकता है एक्टर का। तो या तो एक्टर अपने ऊपर क्या काम करेगा, जो सामने कैरेक्टर के ऊपर क्या काम करेगा, इसके ऊपर दोनों पर बात करेंगे। एक्टर्स वर्क ऑन सेल्फ के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। पहला जो इसका पॉइंट है वो, इसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, रिलैक्सेशन, complete physical mastery and ease of performance. Actors work on self या actors work on himself का पहला पॉइंट है relaxation, complete physical mastery and ease of performance. Okay? ये पहला पॉइंट जो है उसमें स्तानिस्लावस्की कहता है कि एक एक्टर को परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से उसके अंदर एक रिलैक्सेशन का भाव होना चाहिए, वो रिलैक्स्ड होना चाहिए पूरी तरह से। और कंप्लीट फिजिकल मास्टरी जब होगी तभी ये रिलैक्सेशन आएगा, यानी बॉडीली आपको बिल्कुल ही एट ईज में रहना है, तभी वो ईज ऑफ परफॉर्मेंस आएगी। परफॉर्मेंस जब आप करने जाएंगे, कोई कैरेक्टराइजेशन करने जाएंगे, तो उसके भीतर वो ईज लाने के लिए, वो उसके भीतर वो एकदम स्वतः और इंट्यूटिव लगे, ऑटो लगे एंड इंट्यूटिव लगे, इसके लिए आपको रिलैक्सेशन, कंप्लीट फिजिकल मास्टरी एंड ईज ऑफ परफॉर्मेंस वो होना चाहिए आपके भीतर। ये पहला पॉइंट है स्तानिस्लावस्की का। दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन द रोल। कंसंट्रेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन द रोल। एक एक्टर को एक्टिंग करते समय जब वो अभिनय करता है स्टेज के ऊपर, तो उसके भीतर एक पूरी तरह से वो एकाग्र होना चाहिए। और वो एकाग्र कब होगा, इसके बारे में स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि उसको एकाग्र होने के लिए वो जो रोल है उसको वो पूरी तरह से समझे, उसको पढ़े, उसके बैकग्राउंड को समझे,
ताकि वो कंप्लीटली उसके अंदर वो एब्जॉर्ब कर सके, वो रिहर्सल में आए। अगर 30 दिन की रिहर्सल है, 10 दिन की रिहर्सल है, तो उसकी तैयारी करे, वो उसके संवाद को याद करे, क्योंकि ये सब प्रोसेस है जिसके भीतर से कंसंट्रेशन आए। ये ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन लाने के लिए मैं अब ध्यान की मुद्रा में बैठ गया, नहीं। कंसंट्रेशन लाना है इसी काम को करके जो एक कैरेक्टराइजेशन के थ्रू स्टानिस्लॉवस्की ने कहा है करने के लिए। तो उसके अंदर अपने कपड़ों को, कॉस्ट्यूम को रखना, जल्दी आना हॉल में, जूतों को पॉलिश करके रखना, जो भी आपका परफॉर्मेंस से पहले आपके सामान है वो विंग्स में होने चाहिए। क्योंकि जहां तक मैं अभी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो थ्योरी थी जिस समय ये डेवलप हुआ था, उस समय स्टानिस्लॉवस्की जो भी कुछ बात कर रहे थे वो कैमरा के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहे थे, वो जो भी बात कर रहे थे वो स्टेज के संदर्भ में कर रहे थे। Because Stanislavski was totally he was practicing everything in a theater, and जो भी मेथड या जो भी सिस्टम या जो भी रियलिज्म आया है सिनेमा में वो थिएटर के थ्रू आया है। तो जो भी मैं कुछ बोलूंगा वो रेफरेंस हो सकता है थिएटर का है, पर अगर आप कैमरे के माध्यम से सोच सकते हैं तो उसे भी सोच सकते हैं आप। कॉन्सेंट्रेशन एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन द रोल। थर्ड जो इनका जो सूत्र था हिमसेल्फ के लिए वो था प्रिपरेशन बिफोर परफॉर्मेंस। Preparation before performance and slowly sinking into the role. स्टानिस्लॉवस्की ने कहा है कि जो परफॉर्मेंस करने से पहले एक एक्टर को सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। जैसे उसे कैसे कॉस्ट्यूम पहनना है, उसे कैसा मेकअप करना है, उसे कौन से रोल पे कहां हाथ उठाना है, कहां पे उठाकर सामान रखना है। ये सारे पैटर्न को ऑलरेडी एक्टर्स को अपने रिहर्सल्स के अंदर सारा कुछ जान लेना चाहिए। तभी वो क्या होगा, स्लोली रोल के अंदर सिंक कर जाएगा। क्योंकि रोल जो है वो ऐसा है नहीं कि आया और मैंने हाँ भाई क्या करने को बताओ मुझे, मैं कर देता हूं, ऐसा होता नहीं। उस रोल को करने के लिए आप कैसे कैसे, इसीलिए देखेंगे कि आप थिएटर जब आप करते हैं या सिनेमा में खास करके आजकल देखेंगे कि अनुराग कश्यप गैंग ऑफ वासेपुर करने से पहले, या मान लीजिए इम्तियाज अली जैसे डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक लंबा रिहर्सल सेशन रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं ताकि वो एक्टर को सिंक करवा सकें उसके भीतर। जैसे खास करके आप देखेंगे कि वो फिल्म जो थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अनुराग कश्यप के साथ, क्या वो फिल्म थी, राघव रमन 2.0। राघव रमन 2.0 करने से पहले काफी कुछ प्रिपरेशन के लिए उन्होंने बताया है विकी कौशल को और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी। आप उसके बारे में इंटरव्यू पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि they were in the kind of method, they were practicing kind of a method. So ये जो मेथड को समझना, तो ये इसलिए करते हैं ताकि आप इसमें धीरे धीरे करके आप डूबते जाएं रोल के भीतर। और ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है अभिनेता के अपने प्रिपरेशन से, अपनी तैयारी से शुरू होती है ये बात। और अपनी तैयारी कहां से शुरू होती है? जहां से हम ये तय करते हैं कि अब मैं ये रोल करने जा रहा हूं, अब मैं इसके लिए पर्याप्त चीजें जो जुटानी है मुझे, मैं जुटा लूं। ये ऐसा नहीं है कि हम परफॉर्मेंस करने गए और एक एड फिल्म का शूट है, हाँ जी बताइए कैरेक्टर क्या है आपका, शर्ट दे दीजिए मुझे, मैं पैनल कर देता हूं। ये ऐसा नहीं, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजी, because there is some kind of inner and external is also involved. That's why there is a kind of practice, or there is a kind of system, or there kind of method exists. So preparation of before performance के पहले जो भी किसी को अपने नाटक का टिकट देना है, मम्मी को गले लगाना है, मौसी को बाय बाय कहना है, ये सब कुछ जो है ये प्रिपरेशन बिफोर द परफॉर्मेंस के भीतर ही आएगा। और उसी तरह से आप देखेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस ट्रूथफुली करते रहेंगे, बहुत समय तक करते रहेंगे, तो आप धीरे धीरे करके इसके रोल के भीतर आप डूबते हुए चले जाएंगे। ये सब इसके पहले आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी अजीब बात है, सर क्या कर रहे हो आप, इतनी अजीब बात क्या कर रहे हो आप, लेकिन यही बात है ना कि इससे पहले ये सिस्टम में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसके पहले जो एक्टर होते थे वो अपने आराम से कहते थे भाई मेरे पास बुलेट गाड़ी है 30 की स्पीड से चलेगी, मैं आराम से गाजियाबाद होते हुए अपने आराम से पहुंचूंगा, जब मौका मिलेगा तब करूंगा, जब अब निकलना होगा भाई शाम हो रहा है सवेरे निकल लूंगा मैं, शाम हो रहा है। इसके पहले जो एक्टर थे उनका कोई जीने का मेथड नहीं था। इसके एक्टर करने से पहले एक्टर को सेल्फ के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। उनको लगता था कि बस मैं खुद ही मैं राजा हूं, अरे मैं तो राजा का बेटा हूं, राजा का रोल करना मेरे लिए कौन सी बुरी बात है या कौन सी कठिन बात है, ऐसा लगता ही नहीं था। ये सब करने के लिए जब आया, ये बेसिकली ये सिस्टम के अंदर ये सिस्टम एक बनाया गया, इसलिए इसका नाम है सिस्टम। ये सब कुछ सिस्टम तब 1938 में उस दौरान
लिख रहे हैं स्टानिस्लावस्की, ये सब करना चाहिए एक्टर को करने से पहले, इसके पहले किसी ने कोई बात ही नहीं की। अब आप नाट्यशास्त्र के बारे में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि एक्टर्स को स्टेज से पहले क्या करना चाहिए। उसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि एक्टर को कपड़े पहनना चाहिए, आराम से आके पहले में ध्यान करना चाहिए, 100 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए, इसके बारे में कहीं कुछ वर्णन नहीं। जो कुछ भी वर्णन है उसके बारे में एकदम क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में वर्णन है, किस तरह से उच्चारण करना है, किस तरह से आपको हाथ चलाना है, किस तरह से आपको अपने इमोशन को इमोट करना है, इन सब के बारे में बात करना है। लेकिन एक्टिंग मैनुअल के बारे में कहीं पर कोई बात नहीं की गई। पहला आदमी 20th सेंचुरी के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर जो बात करने वाला व्यक्ति है वो स्टानिस्लावस्की है, और कोई है नहीं इसके पहले। इसीलिए स्टानिस्लावस्की अपने आप में ग्रेट आदमी है, तो फादर ऑफ एक्टिंग इसीलिए कह सकते हैं आप कि उस समय की बात जो है वो अभी भी हमारे ऊपर लागू होती है, इसीलिए क्लासिक है अपने आप में स्टानिस्लावस्की को पढ़ना। तो अभी हम फोर्थ पॉइंट के बारे में आते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है उसका है द इनर डिजाइन ऑफ द रोल। द इनर डिजाइन ऑफ द रोल। आपको लग सकता है कि आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो सर, मेरे काम नहीं आने वाला है। हो सकता है आपके काम आ जाए, हो सकता है कोई पॉइंट आपको एग्जाम में पूछ दे, हो सकता है कि इन सबके इनसाइट की वजह से आप कोई किसी चीज को आंसर करने में रेडी रहें बिल्कुल, और इन सब चीजों से आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा बन जाए कि आप किसी चीज को आंसर कर सकते हैं थोड़ा डीपली, और थोड़े से मार्क्स उस पर ऐड हो सकते हैं। तो कहेंगे इनर डिजाइन ऑफ द रोल क्या है। तो स्टानिस्लावस्की ने कहा है कि किसी भी चीज को जो परफॉर्मेंस होता है उसके भीतर जो कैरेक्टर होता है किसी भी स्क्रिप्ट के भीतर, वो उसका रेवलेशन जो होता है वो स्लोली होता है। वो एक अचानक से खुल नहीं जाता है, पहले सीन के अंदर वो एक्टर जाता है उसका मर्डर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ये स्लोली होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई बात होती है, उसका कोई कारण होता है, उसके बाद उसका जो भी अंत होना होता है, हीरो जीतता है या विलेन जीतता है, ये स्लोली रेवलेशन होता है पैटर्न का। और इसको जानना, इस पैटर्न को समझना बिगिनिंग टू एंड, यही है द इनर डिजाइन ऑफ द रोल। यही है रोल का इनर डिजाइन, यही है रोल का अंतरंग पैटर्न। इसको एक्टर को पढ़कर, बार बार टेक्स्ट को पढ़कर जानना चाहिए कि मैं किस तरह से कौन से सीन में बिहेव कर रहा हूं। और ये खुद की तैयारी है, ये कोई डायरेक्टर नहीं। कभी अनुराग कश्यप कभी नहीं कहेगा आपको कि हाँ भाई बता भाई आदित्य बता दे तूने इनर डिजाइन ऑफ द रोल पढ़ के आया क्या, जो मेरी नाटक फिल्म में एक्टिंग करने चला है। नो नो, नो वन विल आस्क यू। These are all your inner impression from Vyom Gupta to me. Okay, so ये सब कुछ जो है वो आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। स्टानिस्लावस्की सबसे पहले आपको तैयार करता है, देन वो कैरेक्टर को तैयार करने को कहता है। पांचवा जो है वो पांचवा है द फीलिंग फॉर द ट्रुथ एन एक्टर्स आर्टिस्टिक कॉन्शियस। द फीलिंग फॉर द ट्रुथ an actor's artistic conscience. The feeling for the truth क्या है। तो स्टानिस्लावस्की कहता है कि जो कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हो स्टेज पे, सबसे पहले तो आपका उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्या परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर आपका ट्रुथ होना चाहिए, उसके ऊपर आपका बिलीफ होना चाहिए कि हाँ ये सच है। He must believe in the truth of the character he is creating. और आप देखेंगे कि ये जो ट्रूथ है वो स्टेज के ऊपर जो है वो पैराडॉक्सिकल है, वो दोनों तरफ है। वो तो या सच है या फिर सच नहीं भी है। आप मानते हैं इसलिए वो सच है, और आप नहीं मानेंगे तो वो सच नहीं। आप मानेंगे कि हाँ मेरी बहन की मौत हो गई स्क्रिप्ट के भीतर, तो आप सच है वो। अगर आप मानेंगे नहीं मेरी बहन ही नहीं है यार, इसका मर्डर क्या होगा, मेरी अपनी पर्सनल जीवन में कोई बहन नहीं है, देन वो सच नहीं होगा। तो द ट्रूथ इज अ पैराडॉक्सिकल, है ना। वो दो भागों में बटा हुआ है, द्वंद्व में बटा हुआ है। इसलिए एक्टिंग के भीतर जो है वो आपको सबसे पहले आपको ये फीलिंग ऑफ ट्रूथ लाने के लिए आपको विश्वास खुद के अंदर पैदा करना पड़ेगा कि हाँ मैं वो कैरेक्टर हूं। यस आई एम राघव रमन, यस आई एम बदलापुर नवाजुद्दीन सिद्दीकी या गैंग ऑफ वासेपुर समथिंग। हाँ मैं हूं जो भी रामाधार सिंह या जो भी है। तो वो सब कुछ आपका तभी शुरू होता है जब आप जहां से बिलीव कर सकते हैं। पर इसके बीच में, इसको करने के पीछे स्टानिस्लावस्की ने एक बात बताया है कि लेजीनेस एक्टर के भीतर नहीं होना चाहिए। इसी पॉइंट के अंदर वो बता रहा है कि कौन सा चीज है जो एक्टर के ट्रुथ को नहीं लाने में मदद करता है, जो उसको उसके ऊपर बाधा बन के छा जाती है, या उसको उसके ट्रुथ को प्रेजेंट नहीं करने देती है। वो चीजें क्या है? तो कहता है लेजीनेस, मेंटल अपैथीज, self-satisfaction, vanity, the eager acceptance of flattery,
of others, and submission of cheapness, bad taste, all are can dull the blunt the actor's feeling for truth. जिस तरह से आप चापलूसी करते हैं, आलसी हैं आप, लालची हैं आप, आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको जलन होती है अपने एक्टर को देख के, है ना। ये सबमिशन ऑफ चीपनेस, कोई चीपनेस करते हैं आप, किसी का जूता छुपा देते हैं आप कि वो बढ़िया रोल ना करे, उसके मेन किसी चीज को, चाकू को या किसी चीज को आप छुपा कर रख देते हैं ताकि यार वो कहीं उसको चाकू हाथ नहीं लगेगी तो वो एक्सपोज हो जाएगा दर्शक के सामने कि वो अच्छा एक्टर नहीं है, उसका हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन छीन लेंगे। ये सब कुछ अब देखिए स्टानिस्लॉवस्की ने ये सब कुछ कितना अच्छा कहा है कि सेल्फ को क्रिएट करने में ये चीजें हानिकारक है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए एज एन एक्टर, आपको एज एन को एक्टर भी आपको कभी नहीं करना चाहिए कि कभी भी ये मेंटल चीपनेस टाइप का जो काम है ये नहीं करना चाहिए एक्टर को। इससे क्या होता है, एक्टर का जो ट्रुथ है उसमें वो बाधा आती है, वो पूरी सच्चाई के साथ बिलीव नहीं कर पाता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो छठा पॉइंट है और वो है क्रिएटिव इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी, फ्रेशनेस एंड सिंसियरिटी। क्रिएटिव इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी, फ्रेशनेस एंड सिंसियरिटी। तो जब एक्टर कहता है कि मैं क्रिएटिंग इमेजिनेशन के भीतर ओरिजिनलिटी, फ्रेशनेस और सिंसियरिटी को किस तरह से ला सकते हैं, तो स्टानिस्लॉवस्की कहता है कि ट्रूथ ऑन अ स्टेज इज पैराडॉक्सिकल, जो मैंने बता चुका हूं आपको, ये एक्टर नोस, ये एक्टर जानता है कि यार नथिंग ऑन द स्टेज इज रियल। एक्टर जानता है कि कुछ भी स्टेज के ऊपर है वो सत्य नहीं है भैया, वो सही नहीं है, लेकिन चूंकि हम मानते हैं इसलिए है। और जैसे ही आप मानते हैं कि ये सत्य है, आप इमेजिनेशन के भीतर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी स्टेज के ऊपर हो रहा है वो मेरा माना गया सत्य है, सत्य नहीं भी है पर मैं मानता हूं कि हाँ मैं रामाधार सिंह का बेटा हूं, तो इसका मतलब है कि वहां से इमेजिनेशन काम करना शुरू कर देता है आपकी। और ये सब कुछ कैसे होता है, ये एक्टर के विजन से संभव है। तो कहता है स्टानिस्लॉवस्की कि these are all will be possible by actor's vision। What kind of vision? The vision of imagination, creating imagination। always, हमेशा क्रिएटिव रहना चाहिए इमेज करते समय एक्टर को। इसलिए एक एक्टर जो है वो इमेजिनरी बीइंग है, एक इमेजिनेटिव बीइंग है, वो हमेशा अपने आप को क्रिएट करता रहता है, वो मानता है, वो सोचता है। अभी मैं आऊंगा एक्टर्स वर्क ऑन सेल्फ के ऊपर, तो मैं इमेजिनरी कैरेक्टर को किस तरह से करते हैं उसके बारे में बात करूंगा मैं। पूरे ड्यूरेशन ऑफ द प्ले के लिए एक्टर जो स्टानिस्लॉवस्की है वो कहता है कि ये टोटल एक्टर का इमेजिन्ड वर्ल्ड है, उसने कल्पना किया है, उसकी कल्पना में वो सब कुछ घटित हो रहा है और वो उसको क्रिएट करता रहता है। चूंकि वो उसको क्रिएट करता रहता है, इसीलिए सामने बैठा वाला आदमी भी सोचता है कि यार ये सही में कोई दूसरी जगह ही है। जैसे मान लीजिए सामने बैठा हुआ हॉल के अंदर दर्शक ये सोचता है, मान लीजिए मेरे पिताजी बैठे हुए और मैं हैमलेट कर रहा हूँ, तो मेरे पिताजी ये मानते हैं कि मेरा बेटा नहीं है, वो आज हैमलेट है और वो अभी डेनमार्क में है। ये इमेजिनेशन ही है कि मैं मान रहा हूं चूंकि मैं हैमलेट हूं, मैं चूंकि मान रहा हूं कि मैं डेनमार्क में हूं, इसलिए सामने मेरे पापा, मम्मी, मौसी, दादी, चाची बैठी हुई लाइन में मान रहे हैं कि हाँ यार ये मेरा बेटा नहीं है, ये हैमलेट है और ये डेनमार्क में। These are all due to creative imagination of an actor। और एक एक्टर का, स्टानिस्लॉवस्की कहता है ग्रेटनेस ऑफ एन एक्टर डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑफ द एक्टर जस्ट एज ए चाइल्ड इन अ प्ले। ग्रेटनेस ऑफ एक्टर, एक एक्टर का ग्रेटनेस इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना क्रिएटिव है। और ये वैसे ही लागू होता है जैसे एक बच्चा खेल के अंदर, मान लो छोटा सा बच्चा जब खेल खेलता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि छोटे छोटे कंचे जो होते हैं, मार्बल्स होते हैं, उसको कहता है कि ये लड्डू है, और फिर वो अचानक से एक लड्डू की दुकान खोल देता है, एक मिठाई की दुकान खोल देता है। और बच्चे पत्ते लेकर आते हैं, तो छोटे छोटे पत्ते या पेपर लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि हमें 2 लड्डू देना, और बच्चा उठाकर 2 मार्बल दे देता है उसके हाथ में। फिर वो बच्चा जो है वो सामने खाने की एक्टिंग भी करता है। ये सब कुछ जो है एक बच्चा बहुत ट्रूथफुली करता है, जबकि वो जानता है कि ये मार्बल है। He knows
that these all things in a play is imaginary, but he due to his belief, due to his inner truth, and due to his creative imagination, वो जो सोचता है वही सामने होता है। वो चूंकि सोचता है कि वो लड्डू है, वो मार्बल नहीं है, इसीलिए सामने वाला जो लड़का जो खरीद रहा है, उससे छोटा बच्चा, वो भी क्या जानता है कि ये पेपर नहीं, ये पैसा नहीं है, पेपर है। पर ये गेम चलता रहता है जब तक कि मम्मी घर में ना बुला ले। ये गेम चलता रहता है जबकि माँ बोलते नहीं कि चले जल्दी से घर आ जाओ, पापा बुला रहे हैं तुम्हें। और बच्चा फिर वो सब कुछ मार्बल वहीं छोड़कर घर चला जाता है और फिर उसे मार्बल हो जाता है। लेकिन ये सोचे हुए ड्यूरेशन के भीतर वो मार्बल जो है एक लड्डू का पार्ट हो जाता है और एक दुकान का गेम शुरू हो जाता है। शॉप खेलते हैं बच्चे। ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव इमेजिनेशन। और ये कब तक काम करता है? जब तक आपका परफॉर्मेंस चलता रहता है। ये 3 घंटे का परफॉर्मेंस है, 2 घंटे का परफॉर्मेंस है, 10 मिनट का सीन कर रहे हो आप, जब तक के लिए आप अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन को ऑन रखेंगे, वो मार्बल जो है आपके लड्डू बना रहे हैं। 7वां जो है इस पॉइंट के अंदर मैं आ रहा हूं, उसका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्निक इनटू द सेकंड नेचर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्निक इनटू द सेकंड नेचर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्निक इनटू द सेकंड नेचर। जो भी टेक्निक आप सीख रहे हैं स्टानिस्लॉवस्की का, या जिसका भी, चाहे वो मेथड एक्टिंग के भीतर हो, चाहे वो माइकल चेखव हो, चाहे वो मान लीजिए ब्रेख्ट का थ्योरी सीख रहे हो आप, ये जो भी कुछ सीख रहे हो आप, उसको अगर सीखने के बाद ये सब मान लीजिए आप स्टेज के ऊपर 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करने वाला हूँ, सावधान दर्शकों, ये सब करने की जरूरत नहीं भैया। जो भी कुछ कर रहे हो वो आपका सेकंड नेचर में जाकर परिवर्तित होना चाहिए। ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग theory should come into the second nature of actor। मतलब वो आपका एक इंट्यूटिव नेचर बन जाना चाहिए, आपकी प्रकृति बन जानी चाहिए कि हाँ मैं राम हूं, मैं सीता हूं, मैं हनुमान हूं। क्यों? क्योंकि आप जितना भी टेक्निक है उसको अप्लाई करके आप उसको सेकंड नेचर में डाल दिए। आपको टेक्निक का इस्तेमाल ही आप करेंगे ताकि आप एक एक्टर, मतलब आप अपनी इमेजिनेशन को, आप अपने कॉन्सेंट्रेशन, आप अपने रिलैक्सेशन को, आप अपनी साइकोलॉजी को, आप अपनी बॉडी को, इन सब का इस्तेमाल जो है वो आप सेकंड नेचर के तौर पे करने लगेंगे। फर्स्ट नेचर क्या है? आप जो आप हैं। सेकंड नेचर वो जो आप नहीं है लेकिन आप उसको अपना बनाकर रखें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्निक इनटू द सेकंड नेचर, ये यहां पे इस 7 पॉइंट के भीतर एक्टर्स वर्क ऑन सेल्फ खत्म हो जाता है। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं एक्टर्स वर्क ऑन रोल। रोल के ऊपर एक्टर को क्या काम करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है इसमें से कोई चैप्टर आपको पूछ दे, या हो सकता है इसमें से कुछ आपसे वो लोग बात करना चाहें। तो पहला इसमें है मैजिक इफ या इफ थ्योरी। इफ और मैजिक इफ, स्टानिस्लॉवस्की का एक्टर्स वर्क ऑन रोल का पहला चैप्टर है इफ और मैजिक इफ। मैजिक इफ किस तरह से काम करती है एक्टर के लिए, और है क्या ये जादुई अगर, हिंदी में कहें तो जादुई अगर क्या चीज है भैया? जादुई अगर कैसे समझे हम? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इफ और मैजिक इफ इन द चैप्टर ऑफ एक्टर्स वर्क ऑन रोल। एक्टर्स अपने रोल के भीतर क्या काम करेगा? एक्टर्स जब अपने ऊपर काम कर चुका है तो जाहिर सी बात है एक्टर जिसके ऊपर काम करेगा वो दूसरा आदमी है। आदमी जब अपना घर बना लेता है तो उसके बाद उसे दूसरे घर बनाने की जरूरत पड़ती है। एक्टर अपने आप से फुलफिल हो जाता है आदमी, तो फिर दूसरे को कल्याण करने में लगता है। एक्टर्स जब अपने आप को सारा कुछ जान गया तो फिर उसके बाद उसके लिए जानने लायक या काम करने लायक जो दो चीजें बच जाती है वो है एक्टर्स वर्क ऑन रोल, चरित्र के ऊपर काम, या क्रिएटिंग अ रोल, चरित्र का निर्माण। तो एक्टर इसको करने के लिए सबसे पहले जो कहता है कि आप सबसे पहले मैजिक इफ का इस्तेमाल करो। यार आपका हो जाएगा, बिल्कुल काहे टेंशन ले रहे हो, बिल्कुल साफ सच्ची ढंग से आप मैजिक इफ का इस्तेमाल करो। व्हाट इज मैजिक इफ? क्या है ये जादुई अगर? कहता है इफ आई वेयर सो एंड सो, इफ आई वर सो एंड सो, what would I do in the situation? What would I do in this situation? बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैजिक इफ को बिल्कुल आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए अभी आपका नाम पुष्कर सिंह है, या संकेत अंभोरे है, या मान लीजिए आकाश शर्मा, या आदित्य हैं, या पूर्णिका हैं, या कोई भी हैं। आप जब ये रोल करने जा रहे हैं तब तक आप सेल्फ हैं। जैसे ही आप रोल करने जा रहे हैं और आपको कहा जाता है कि आज आपको शकुंतला का रोल करना, तो फिर आप सोचते हैं कि अगर मैं शकुंतला होती तो मैं क्या करती? अगर मैं शकुंतला होती, अगर मैं रावण होता तो मैं क्या करता? हाँ, रावण नहीं, रावण।
तो रावण अगर मैं होता तो मैं क्या करता, है ना। अगर मैं राघव रमन होता तो मैं क्या करता। ये जैसे ही सोच आपके अंदर आती है, अगर मैं ये करता तो क्या होता, ये आपको एक क्रिएटिव एस्पेक्ट में, एक इमेजिनेटिव स्पेस में लेकर चली जाती है कि अगर मैं रावण होता तो क्या करता मैं। तो ये सोच जो है, ये सोच लाना, ये हर समय एक्टर को 3 घंटे के परफॉर्मेंस के अंदर या रिहर्सल के अंदर हर समय या कैमरे के सामने एक्टिंग करते हुए हर समय उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं चंदन नहीं होता और अगर मैं एक शेर होता तो मैं क्या करता। देन उसी समय से ये बिहेवियर हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है कि मुझे शेर की तरह एक्टिंग करनी है। ये शुरुआत ही यहां से होता है कि इफ आई वेयर सो एंड सो व्हाट वुड आई डू इन दिस सिचुएशन। मैं क्या करूंगा इसके भीतर, क्या बिहेव करूंगा, या मैं क्या करता इसके भीतर। अगर मैं वो आदमी नहीं होता, मैं कुछ और होता। ये है कैरेक्टराइजेशन का पहला सिद्धांत, रोल को करने का पहला सिद्धांत यही है। अगर मैं ये नहीं होता और ये होता तो मैं क्या करता। दूसरा जो बात है इसके अंदर वो है गिवन सर्कमस्टांसेस। गिवन सर्कमस्टांसेस, GIVEN CIRCUMSTANCES, गिवन सर्कमस्टांसेस। जादुई गिवन सर्कमस्टांसेस मतलब दी गई परिस्थिति, हिंदी वालों के लिए दी गई परिस्थिति, गिवन सर्कमस्टांसेस। गिवन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्टानिस्लॉवस्की ने बताने की कोशिश की है कि भाई जल्दी जल्दी क्लास खत्म करना है तो आपको ये जल्दी जल्दी आप पॉइंटर्स में बताओ। गिवन सर्कमस्टांसेस वो चीज है जो ऑलरेडी दी गई है, उसके भीतर एक स्क्रिप्ट के भीतर ऑलरेडी दी गई है सर्कमस्टांसेस। क्या क्या, कि जैसे उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, उसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड कैसा है, और राइटर ने उस रोल में क्या लिखा है उसके बारे में। गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप एक चीज और जोड़ सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और शायद ये आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है FTI के एग्जाम में, कि 5 W's कौन कौन से। 5 W's, ये 5 W's भी गिवन सर्कमस्टांसेस चैप्टर के भीतर आता है, जिसमें पहला W है who, सेकंड है what, थर्ड है why, फोर्थ है where एंड फिफ्थ है when। फिर से who, what, when, where, why। who, what, when, where and why। सिंपल सी बात है भैया, इसी को 5 W's कहते हैं। और आजकल हाउ भी हो गया है कि मैं कैसे करूंगा, इसको भी इन्होंने जोड़ दिया है। तो अगर पूछे अगर एग्जाम में कि हाउ भी क्या इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, यस इंक्लूड कर सकते हैं सर, बिल्कुल। तो 5 W's जो है वो who, what, when, where, why जो है वो आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में पहुंचा जाती है। who आर यू, इस रोल को करते समय आपको अपने से प्रश्न पूछना है, who आर यू, कौन हो आप। और इसके पता चल जाएगा स्क्रिप्ट पढ़ने से कि यार ये हैमलेट है, इसका घर डेनमार्क में, इसके मम्मी का नाम गर्टरूड था, इसके पापा का नाम पापा तो चले गए दुनिया से, सीनियर हैमलेट, और जो उसका चाचा था वो क्लॉडियस था। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वो पढ़ते हुए मिल जाएंगी। हैमलेट, इसका मतलब है हु आर यू, आपको ऑलरेडी पता है। होरेशियो का दोस्त है, लेआर्टिस का दोस्त है, उसका दुश्मन है और ओफिलिया से प्यार करता है। ये सारी बातें जो है वो ऑलरेडी आपको हैमलेट पढ़ने से हु आर यू के अंदर पता चल जाता है। व्हाट आर यू डूइंग, मैं क्या कर रहे हैं उस सिचुएशन के अंदर। अरे दिमाग खराब हो गया है, पापा को मार दिया है, पापा के भूत ने मुझे कहा है कि उससे बदला लेना है, ये दिमाग में है। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ट्राइंग टू सर्च हु इज द, यू आर ट्राइंग टू फाइंड हु इज द क्रिमिनल ऑफ माय फादर्स डेथ, है ना। आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पिता की मृत्यु का कौन है आदमी यार। व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन यू आर डूइंग, कब कर रहे हैं आप, दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है, ठंड है कि गर्मी है, जाड़े की बात है या सितंबर है या अगस्त है, 1997 की बात है या 200 ईसा पूर्व की बात है, कब की बात है ये। व्हेन यू आर डूइंग, सिंपल सी बात है। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, कहां घट रही घटना, डेनमार्क में हो रही है या दिल्ली के गाजियाबाद में हो रहा है या मुंबई के लोअर परेल में हो रहा है, कहां घटना घट रही है। व्हेन, वेयर, कहां घट रही है, एंड व्हाई, क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, काहे को क्या कुछ हुआ है क्या। हाँ हुआ है, पापा को कुछ दिक्कत था, मम्मी को पापा से प्यार नहीं था, चाचा इस बात का फायदा उठाए और उन्होंने मम्मी से शादी कर ली। These are all why, क्यों हमारे दिमाग में ये, मुझे क्या कर, why से बिहेवियर मिलता है, तो why क्यों हम कर रहे हैं ना। हाउ, अब कैसे करेंगे इसको, इस मामले को कैसे निपटाएंगे,
है ना। ये सभी चीज जो है वो आपको गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर पहुंचा देती है। 5 Ws को भी अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे, बिना मुझे फोन किए आप लिख सकते हैं कि नहीं भैया मुझे पता है, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई। और अगर थोड़ा सा मार्क्स बढ़ाना है तो हाउ को भी जोड़ दिए, है ना। सो नाउ कम टू द थर्ड चैप्टर, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, कल्पना। जाहिर सी बात है कल्पना के बारे में आगे ही बात कर चुके हैं, और देखेंगे कि एक्टिंग के भीतर जो भी कुछ है वो काल्पनिक है। हर चीज इवन जो ट्रुथ है वो भी स्टेज के ऊपर जो है वो काल्पनिक है, वो सच नहीं। जो हमारा वहां पापा है वो रियल जिंदगी में हमारे पापा नहीं, वो हमारी कल्पना से पापा हैं, क्योंकि मैं मानता हूं इसलिए वो मेरे पापा हैं। क्योंकि मैं कैरेक्टर हूं, मैं हैमलेट कर रहा हूं और हैमलेट का पापा सीनियर हैमलेट है, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ मेरे पापा हैं। इमेजिनेशन, हर समय इमेजिनेशन काम करता रहता है स्टेज के ऊपर, जो भी कुछ है वो इमेजिनरी है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब सैनफोर्ड माइजनर कहता है कि व्हाट इज एक्टिंग, सो कहता है कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट बिहेविंग इन इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। बिहेव करना, इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर बिहेव करना ही एक्टिंग है। इसलिए एक्टिंग इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द इमेजिनरी थिंग, इट्स ऑल द इमेजिनरी डिटेल्स। व्हेनेवर कोई भी तुम्हारी वहां गर्लफ्रेंड हो, वो रियल जीवन में तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम वहां हत्या कर रहे हो, वो रियल जीवन में तुम किसी को नहीं मार रहे हो, कोई थाने नहीं जा रहा है ना। जो भी वहां निपटना है वो 3 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। सो जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो हम जान रहे हैं कि हम 3 घंटे के लिए क्या कर रहे हैं, और वो केवल हम एक इमेजिनरी चीज है, मैं नहीं हूँ, है ना। इसलिए स्टानिस्लॉवस्की कहता है कि इवन एक्टर इज ऑल्सो मैं आगे आऊंगा उसके बारे में, अभी नहीं कहूंगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, स्टानिस्लॉवस्की ने कॉन्सेंट्रेशन को 3 लेयर बताया है। तीन लेयर में उन्होंने डिवाइड किया है इसको, इमेजिनेशन को। एक है फर्स्ट लेयर ऑफ इमेजिनेशन, सेकेंड लेयर ऑफ इमेजिनेशन, और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, मीडियम लेयर ऑफ इमेजिनेशन, लोअर लेवल ऑफ इमेजिनेशन, एंड द बिग लेयर ऑफ इमेजिनेशन और द बृहत्तर लेवल ऑफ इमेजिनेशन। 3 लेयर पे इमेजिनेशन काम करती है एक्टर के भीतर। तो कहता है कि एक्टर को हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए एक्टिंग करते समय। तो पहला लेयर ऑफ इमेजिनेशन वो हो सकता है जहां पर आप बैठते हैं, स्टेज के संबंध में कह रहा है ये, या मान लीजिए शूटिंग के संबंध में सोचिए कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, सामने मेरा आईपैड रखा हुआ है, और ये मेरा यहाँ पर मेरा बैग, मेरा एक टेबल है, और यहाँ पर मेरा फोन है। ये मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ इमेजिनेशन है, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन। सो ये मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे सबसे पहले वाले घेरे में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मेरा एक टेबल, मेरा एक कुर्सी, मेरा वाटर बॉटल। जैसे आप अपने घर में सोचें, अगर फर्स्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन में आपका वाटर बॉटल, जहां पर सबसे ज्यादा बैठते हो आप, जहां पे सबसे ज्यादा एक्टर जिसको यूज कर रहा हो कैरेक्टर, वो जो है लेवल जहां पर चीजें मौजूद, जो चीजें हैं उनको आप समझना है फर्स्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। सेकेंड लेवल ऑफ कंसंट्रेशन में 2-4 सोफे वगैरह एंट्री एग्जिट के लिए जहां पर लोग आते हो बैठते हो, साथ ही कलाकार, या कुछ मान लीजिए आपका कोई फूलदान, या मान लीजिए कोई आपका टेबल, लैंप टेबल रखा हुआ हो। ये सब कुछ चीजें जो है आपका सेकेंड लेवल ऑफ इमेजिनेशन कंसंट्रेशन में आ जाती है। और थर्ड लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को करने के लिए जितनी भी चीजें स्टेज पे मौजूद है, जो भी कुछ आप एक्टिंग के दौरान देख रहे हो, वो सब कुछ आपके बेहतर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन में, यानी कि जो बिग लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है उसके भीतर आ जाती है कंसंट्रेशन। इसी तरह से एक्टर को कंसंट्रेट करना चाहिए। जब भी वो एक्टिंग करने जाता है, सबसे पहले देखना चाहिए कि उसके आसपास में कौन सी सामान है। ये कंसंट्रेशन को करने के लिए, इसलिए नहीं कि सामान कहीं चोरी ना हो जाए, इसके लिए नहीं, इसके लिए कि वहां पर वो जो बैठा है, सबसे पहले आपको फोकस करना है कि मेरे यूज का सामान सब कुछ है कि नहीं मेरे पास। मैं इस एक्ट के भीतर पेन यूज कर रहा हूँ, मैं इस एक्ट के भीतर फोन यूज कर रहा हूँ, मैं इस एक्ट के भीतर अपना कॉपी यूज कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ मेरे पास है कि नहीं है वहां पे। देन उस पर फोकस करना चाहिए। देन सेकंड लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पे देखना चाहिए कि यहाँ और चीजें क्या क्या है जो मेरे नेक्स्ट वाले एक्ट में यूज होने वाली है। जैसे कि सोफे पर आकर कोई आदमी बैठेगा, या अपना चप्पल जूता खोलेगा, या वाटर का बॉटल रखा हुआ है। थर्ड में यहाँ पर किचन में मम्मी खाना बना रही है, दूर में कोई आदमी आने वाला है, एंट्री उसका गेट उधर है, ये सब कुछ ध्यान में रखना है। टेलीफोन का लाइन उधर दूर में खड़ा है, बिजली की बल्ब उधर चमक रही है, ये सब कुछ आपका जो है वो बिग लेवल ऑफ इमेजिनेशन में आनी चाहिए। सो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छे से समझाया इस आदमी ने रिलैक्सेशन कंसंट्रेशन के बारे में। 5वां पॉइंट जो है वो है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन,
रिलैक्सेशन के बारे में स्टानिस्लॉवस्की कहता है कि एक एक्टर को सबसे पहले स्टेज पे जाने से पहले उसको सबसे पहले अगर 4 बजे से उसका परफॉर्मेंस है तो उसको 2 या 3 बजे ही आ जाना चाहिए परफॉर्मेंस हॉल में। आराम से बैठना चाहिए, नहाना चाहिए, धोना चाहिए, कपड़े पे आयरन करना चाहिए, खाना चाहिए ठीक से। उसके बाद उसको सब कुछ अपने रोल को रिहर्स कर लेना चाहिए, एक बार सारे लाइंस को देख लेना चाहिए। फिर स्टेज के ऊपर जाकर वो चीजों को दोहरा लेनी चाहिए जहां पे वो एक्ट कर रहा है। अपने को एक्टर का हाथ अगर पकड़ रहा है तो वो भी कंफर्टेबली करके देख लेना चाहिए। अपना सामान वो कहाँ विंग्स में रखा है ये भी उसको देख लेना चाहिए। क्यों? ताकि उसके अंदर वो रिलैक्सेशन बन जाए, उसके अंदर वो रिलैक्सेशन आ जाए कि वो परफॉर्म जो करने जा रहा है तो उसका वो शिवरिंग नहीं हो रहा है, उसके पैर नहीं कांप रहे हैं, वो ये चिंता में नहीं रखा हुआ कि अरे अगला सीन का जो चाकू था वो तो मैंने अपने दोस्त को दे दिया था, वो पीछे कहीं पान ना खा रहा हो, है ना, चाकू मांगने के लिए मुझे स्टेज के बाहर निकल के जाना पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ये सब चीजें जो हैं वो आपके कॉन्सेंट्रेशन को खत्म कर सकती है, आपको रिलैक्स नहीं कर सकती है, आपका मसल टेंस हो सकता है परफॉर्मेंस के दौरान। इसलिए आपको क्या रखना चाहिए, सबसे पहले आकर इन चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। जिसको अपना दोस्त को टिकट विकट देना है हॉल से, भाई आ जाइए देखने के लिए मेरा परफॉर्मेंस, तो उसको आपने टिकट वगैरह जाकर दे दिया, वो लोग जाकर टिकट ले लिए। ये सब कुछ आपको परफॉर्मेंस से पहले कर लेना है। परफॉर्मेंस के दौरान ठीक 5 मिनट पहले आप फोन ऑफ, हाँ जल्दी से आ जाओ, बिल्कुल शुरू होने वाला है, गेट पे खड़ा हूं मैं, एकदम खोलने वाला हूँ दरवाजा, पीछे से आ जाना, है ना, मैं बिठा दूंगा तुमको बेस्ट रो में। ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन आपका किल होगा। इसलिए सब कुछ जो करना है वो प्री करना है, जो भी करना है पहले करना है। इसीलिए एक्टर के सब मेथड में डाल दिया गया है कि भैया कोई ऐसी काम मत करना जिससे कि गलती हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन के बाद रिलैक्सेशन में पढ़ा चुका हूं। छठा जो है वो है डिवीजन इनटू द यूनिट्स एंड टैकलिंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम। डिवीजन इनटू यूनिट्स एंड टैकलिंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम। डिवीजन इनटू यूनिट्स एंड टैकलिंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम। हिंदी वाली किताब में इस तरह से समझाया नहीं गया है, माफ कीजिएगा, नहीं समझाया है। ये मैं क्यों नहीं समझाया इस तरह से मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप जैसे अभिनेताओं को या आप जैसे परीक्षार्थियों को इस तरह से बात करने के लिए मैं इसी तरह से इन चीजों को पढ़ा सकता हूं। वहां पर अलग तरह से कहानी कही गई है स्टानिस्लॉवस्की के द्वारा किताबों में, जिसमें उनके 3-4 शिष्य है, वो आते हैं, वो बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो हिंदी किताब में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यार आप उसको रेखांकित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने भी हिंदी वाली किताब नहीं पढ़ी, पर आप देख लीजिएगा। सो डिवीजन इनटू यूनिट्स एंड टैकलिंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम कैसे, किस तरह से आप कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं। तो कहता है कि एक्टर का जो है वो 2 लेवल पर एक्शन होता है उसका, एक एक्सटर्नल एक्शन, एक इंटरनल एक्शन। एक्सटर्नल एक्शन वो होता है जो हम बाहरी, जिसको हम प्रतिक्रिया के तौर पे करते हैं, जैसे किसी को थप्पड़ मारना। थप्पड़ मारना क्यों हुआ? क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा आया, गुस्सा है वो इंटरनल एक्शन। और थप्पड़ मारना जो है एक्सटर्नल एक्शन है, कहीं पर उठना, कहीं पे बैठना, किसी से दोस्ती करना, किसी से गले मिलना, किसी की हत्या कर देना, ये सब कुछ जो है वो एक्सटर्नल एक्शन है। एक्सटर्नल एक्शंस आर ऑलवेज फिजिकल, बट द इंटरनल एक्शंस आर ऑलवेज इंटरनल, नॉन फिजिकल। दैट्स कॉल्ड आल्सो साइकोलॉजी। You may call psychology also, because it's happening on the inner level of your mind. So इसी एक्सटर्नल एक्शंस जो है वो मेथड, इसी को हम मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन कहते हैं। इसी एक्सटर्नल लेवल ऑफ एक्शन को हम मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन कहते हैं, यानी जिसके तहत मेरा उठना, बैठना, जाना, आना, खाना पीना हो रहा है, उसे हम मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो इंटरनल लेवल पे हो रहा है, जिसके अंदर हम कहते हैं सबटेक्स्ट। सबटेक्स्ट आपसे पूछ सकता है व्हाट इज सबटेक्स्ट? सबटेक्स्ट which is happening internally, that's called inner level of action. The inner level of action is subtext. जैसे किसी के मन में अंदर बहुत गाली आ रही है, माँ की, बहन की, सामने से, है ना? I would like to remind you, because today you have another I know you are very dedicated and you have forgotten. So at 7 o'clock you are supposed to join a webinar which you told me. So what I would say that today we will discontinue the discussion now, and we will invite you for a longer duration class when we will be having a 40 days and 80 hours of the discussion on various courses of acting. Right, sir. It was a wonderful session because it was a great learning for me also. I have jotted down many important questions also. So we would invite you for a longer discussion once we have a 40 days and 80 hours kind of a thing.
So Sure. I would just remind you that you are supposed to join at 7 o'clock. You already 6 minutes late. So Yes. I will take care of the students, and Yes. right now you can leave with the discussion so that you will not miss out the important webinar. I am Yes, sir. grateful that at a 0 hour in the morning, Yeah. you accepted my invitation, and Yeah. I'm really grateful that today's discussion was very enlightening for me as well Yes. as for the student who joined here. And Thank you, sir. the discussion we will continue in the future for sure. Okay. Sure. Thank you, sir. You can end the meeting for yourself, and I would 10 minutes. I will take up the discussion with the students. Okay. So I have a 5 minute or 7 minutes, sir? Yeah, sure. Please. Oh, okay. Okay, fine. So just I have two topics I'll discuss, and if may I discuss with any question? May I take a question from them, or we'll do later? Yes, I want to ask Pushkar, something. I would moderate. Pushkar Singh, please ask the question. Yeah. Pushkar Singh. Hello, sir. Yeah. Hello, Yes. sir. Yes. Good evening, sir. Sir, physical relaxation और mind relaxation के बारे में कुछ बताएं सर. So physical relaxation means that see the relaxation is totally both the parties related to each other. When you are acting, the first thing, the tension comes to your mind, then it comes to your body. So it's travel through the mind to the body. Okay. So when you are saying about the physical relaxation or maybe about the relaxation we are talking, these both are the terms are related with our inner psychology and our outer physical method of physical action. So both the terms are related to each other. So if you are not relaxed from inside, you can't act. You maybe fumble with the dialogues. You maybe miss the action sequence because if you're not relaxed. So there is a certain kind of practices. There is because whatever we are talking about, we are not talking about the practicing of the acting. We are just dealing with the Siddhantic Paksh of acting. When you are going the exercises, when you will join the acting classes, you may learn how we can concentrate or how we can relax. There is a certain kind of theory and formula which later by the Stanislavski and their disciples, they invented some kind of formula which we generally discuss in our acting classes. Thank you, sir. Okay. Pushkar is fine. Kunal Sunny Grahi. Yes, sir. So good evening, sir. Sir, Yes. can you tell us? Can you give us a little brief note on how our senses triggers our memories? Because I think that's a very integral part of. Sensor trigger the question. This question would be taken up by tomorrow by another faculty in a detail. So let's not waste the time here. Yes. Let's use his 5 minutes more because he's already late. He has to join the workshop as a speaker. So he's already late. Thank you. Thank you. Deep Shikhan Master. Yeah, very good evening, sir. आपने जो बात की थी रियलिज्म की, मुझे एक प्रश्न था कि why realism is needed in screen acting? Why realism is needed in screen acting? Do dramatic acting will not connect the people? Yeah. So see, the thing is that in terms of Indian acting, when you will see the earlier cinema of ours, you can see there is a variety of acting was there. Like when you see Mughal-e-Azam, you can see the Prithviraj Kapoor is doing a Parsi kind of acting. So when you will see the Kalia Mardan kind of cinema or before that Sant Tukaram, there is very different kind of acting were there because of the acting practices which we are doing in our acting system was not completely the realism. Before the Industrial Revolution in our system, before 18th century, there were no such kind of practice of realism in our acting practices. So what were there in a theater came to the cinema. So in a early period of our cinema, the acting was not very realistic. But after the modernity comes, the psychological things came in our society. Our acting also became the realistic acting, and we started following the Stanislavski and those kind of practices after the 1947, after the Nehruvian era. Because Atal, next question. So sir, wait, I have sir कि dramatic acting तो connect करेगी कि नहीं करेगी? करेगी एक्टिंग कनेक्ट करेगी, पर मुझे नहीं पता है कि वो जो मीडियम है एक्टिंग. देखिए आपको मैं एक चीज बता देता हूँ आप सबों के लिए,
एक्टिंग जो है वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको कि Yeah. सिनेमा भी यूज कर रहा है, जिसको थिएटर भी यूज कर रहा है, जिसको कि एडवर्टाइजिंग मीडिया भी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। इन तीनों के भीतर एक्टिंग स्टाइल जो है बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। या तो जब भी आप कोई मान लीजिए रामलीला या रासलीला हो रहा हो स्टेज के ऊपर, उसके अंदर बड़ी बड़ी एक्टिंग होती है, बड़े बड़े एक्टिंग होते हैं उसके भीतर। लेकिन जब भी आप सिनेमा के लिए आते हैं तो सिनेमा में वो चीजें जो है फ्रेम के अनुसार, जीवन के अनुसार और साइकोलॉजिकल चीजों के अनुसार वो कम जाती है और वो रियलिज्म की तरफ बदल जाती है। अब क्यों होती है इसके पीछे बहुत बड़ा एग्जाम, बहुत 2-3 दिन क्लास लगेंगे तब जाके समझ में आ सकता है कि वो कैसे चेंज हुई। कोई Vikas बात नहीं। Asral, next question. धन्यवाद। Vikas Asral, Yes. this is the last हाँ. question because he has Hello, 7:15. I had promised him that he will leave the meeting, so I have promised him at another place where he is speaker today. So I Yes. have. So I'm taking the last question on this. सर हो सकता है कि अभी हमें क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, अगर हम फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो क्या कैसे कर तो सकते हैं? सर को आप क्वेश्चन अगर बता देंगे, मैं उनको आंसर लिखकर भेज सकता हूँ या उनसे बात कर सकता हूँ। ईमेल आईडी आपकी अगर मैं विकास अटल, जो भी कुछ है सर के पास है, मेरी ईमेल आईडी वो शेयर करेंगे आपसे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा विकास. I would share with you. So at the end, on behalf Thank you, sir. of the Thank you. student community, I'm really thankful for the Chandan to spare time for him. Though he is Thank you, sir. speaker in another webinar at 7 o'clock, he is 15 minutes late because of me. But I Yeah. would apologize with them. So Chandan, we would host your couple of classes in the long 40 days, 80 hours of a program later on. So I would. Fine, sir. Okay. Yes, Thank you. yes, sir. Okay, thank you, sir. Sure. बाकी लोग जो हैं अभी क्या सर जो है निकल गए हैं because sir has to leave. So I would suggest that I will not take up the today's question. Keep your questions ready in the future, and not whenever, we are already finalized the plan of 40 days, 80 hours, which is the domain specific, and 60 days, 120 hour, that include the MCQ plan for a long-term coaching online. So I would connect with you, all of you. Before I leave the thing, I would ask you to rate the today's class on the feedback thing. I have launched the poll, so please, some of you have joined late, but you have got the energy of Chandan sir, how knowledgeable he is. He has been coming to Craft Film School for conducting 10 days workshop with the practical acting with the student. So you could see how much the student has been benefited because of his presence in the craft. So I would request you to just rate today's class. That's it. Those who has joined late, I am sorry for them. And but still I admit them today, particularly because I was very adamant that I will not admit the people who are late. But still I did it because it was really a wonderful class, and I thought let the student also enjoy it. So it's a 51 out of 58. 7 people are still sleeping. Please wake up. I know you have gone for a walk and you are dreaming that you will go to FKI and learn over there. So that way may not happen because 4,000 people would appear next year. So come back from your evening walk and do it. So 5 people have come back. 4 are still on the walk. So let's forget about them. So I hope many of you enjoyed it. He spoke today in Hindi. If there is some Kerala boy, my apologies on his behalf, but I thought let him go in a flow for a lot of people who are our country mother tongue, which is Hindi. So that's the way it is. Thank you very much, and have a nice day for today. And we'll meet up tomorrow. Tomorrow there will be another person who will be as enthusiastic as Chandan is. Thank you very much. Have a nice day.